میں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ دامت برکاتہم سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں، اور قبل بیان سے جن حضرات کو انعام سے نوازا جا رہا ہے ان کو انعام سے نوازے۔ حضرات جن حضرات نے پورا قرآن ایک نشست میں سنا ہے ان کے نام یہ ہے: جناب حافظ محمد نعیم صاحب، قاری معمور احمد صاحب جامعی، حضرت مولانا محمد عاقب شاہد صاحب قاسمی، جناب حافظ عتیق احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسان صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، حضرت قاری محی الدین صاحب مظاہری، حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب قاسمی، حضرت قاری محمد آصف صاحب ثاقبی، حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب مفتاحی، حافظ محمد اسلم صاحب اشرفی، حضرت مولانا مفتی سلطان قمر صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی دانش صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی سعد نور صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد عادل صاحب ندوی۔ یہ حضرات ہیں جنہوں نے ان بچوں کا ایک نشست میں قرآن سنا ہے۔ مدرسے والوں نے ان حضرات کے لیے بھی انعام کا انتظام کیا ہے، جس کو حضرت مولانا امین الحق عبداللہ کے ہاتھوں سے انعام سے نوازا جائے گا۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں جن کا نام لیا گیا ہے وہ اگر یہاں موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔ یہ ہے جناب حافظ محمد نعیم صاحب دعوت برکاتہم، جنہوں نے ایک نشست میں قرآن سنا ہے۔ مولانا سلطان قمر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ جناب قاری محی الدین صاحب مظاہری دعوت برکاتہم، کافی حضرات اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں اور تشریف بھی لائے تھے تو وہ جا چکے ہیں، اس لیے جو حضرات نہیں ہیں ان کو بعد میں انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت مولانا سلطان قمر صاحب درمیان میں کہیں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئے۔ مولانا مستقیم صاحب، حضرت مولانا مفتی سلطان قمر صاحب حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات مفتی مولانا محمد عاقب شاہد صاحب درمیان میں کہیں تشریف فرما ہے، ان سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ تشریف لے آئے اور انعام حاصل کریں۔ حضرات یہ پھر سے میں دوبارہ نام پیش کر رہا ہوں جن حضرات نے ایک نشست میں قرآن سنا: جناب حافظ محمد نعیم صاحب، جناب قاری معمور احمد صاحب جامعی، حضرت مولانا محمد عاقب شاہد صاحب قاسمی، حافظ محمد عتیق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسان صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، قاری محی الدین صاحب مظاہری، مولانا مستقیم صاحب قاسمی، مولانا مفتی محمد معاذ صاحب قاسمی، قاری محمد آصف صاحب ثاقبی، مولانا مفتی محمد ایوب صاحب مفتاحی، حافظ محمد اسلم صاحب اشرفی، حضرت مولانا مفتی سلطان قمر صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی سعد نور صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد عادل صاحب ندوی۔ یہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنا ہے۔ حضرات جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ان کا بھی انعام ہے، اس لیے میں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ ان کا بھی اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو انعام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔
काफ़ी देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और कुरान पाक के हवाले से बड़ी कीमती गुफ्तगू आप हजरात ने सुनी है। 2:20 हो रहे हैं, अभी आपको ज़ोहर की नमाज भी पढ़नी है और दीगर मसरूफियात भी हैं, इसलिए 5-7 मिनट में कुछ बातें आपकी खिदमत में रखकर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी और प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। मुझे 1-2 अहम बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, तो आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट के लिए ज़रा खास तौर पे अपनी तवज्जो इनायत फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, मुसलमानों के लिए 2 चीज़ों को क़यामत तक के लिए बुनियाद बनाया है। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात, और दूसरी चीज़ है कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है। ये 2 चीज़ें, कुरान और साहिब कुरान, अल्लाह का कलाम और जिस शख्सियत पर अल्लाह ने अपना ये पाक कलाम उतारा, ये 2 चीजें क़यामत तक हर मुसलमान की बुनियाद है। कुरान करीम, इसका भी क़यामत तक बाकी रहना, महफूज रहना ये ज़रूरी है और मुसलमानों की, इंसानों की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और आपकी ज़िंदगी का, आपकी सीरत का, आपकी सुन्नत का, आपकी तालीमात का क़यामत तक बाकी रहना ये ज़रूरी है और हम इंसानों की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर हमारी कामयाबी का दारोमदार है। बाकी जितनी चीज़ें हैं दीन की, जितने भी शोबे हैं दीन के, जितने भी सेक्शन हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो इन्हीं दोनों से निकलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा फरमाया है, यानी इस दीन की हिफाजत का वादा फरमाया है। क़यामत तक ये दीन अपनी असल हालत में बाकी रहेगा, इसमें सारी दुनिया मिलकर भी जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं कर पाएगी और क़यामत तक आने वाले इंसान इससे फायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहते तो सिर्फ इरादा फरमा लेते और इस दीन की हिफाजत हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए इंसानों में से ही कुछ लोगों को चुना और उनके सीने में कुरान को महफूज कर दिया। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है। अल्लाह ताला ने इंसानों पर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं डाली, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं डाली। अल्लाह ने अपने जिम्मे ये काम लिया कि इस दीन की हिफाजत मैं करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए इंसानों में से ही अपने कुछ बंदों को चुना। तो ये जो निज़ाम चल रहा है कुरान को याद करने का, कुरान को हिफ्ज करने का, अपने सीने में महफूज करने का, ये अल्लाह का दिया हुआ है। इस निज़ाम को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ कुरान, आपके सहाबा की बड़ी तादाद कुरान पाक के हाफिज, खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और दीगर, ये सब हुफ़ाज़ सहाबे किराम में, और उस वक्त से आज तक लगभग 1500 साल गुजर गए और कुरान को अपने सीने में याद करने, महफूज करने का सिलसिला जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। कुरान भी महफूज रहेगा और कुरान को याद करने का ये सिलसिला भी बाकी और महफूज रहेगा। इसी तरह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है, तो सिर्फ कुरान के अल्फाज की हिफाजत नहीं होनी है, कुरान के अल्फाज की हिफाजत भी होनी है, कुरान के मानी की भी हिफाजत होनी है, कुरान का जो एक्सप्लेनेशन है उसकी भी, जिसे तशरीह कहा जाता है, उसकी भी हिफाजत होनी है। और इसकी हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुना है जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं, कुरान की जो लैंग्वेज है अरबी जुबान उसे सीखते हैं, कुरान की तशरीह करते हैं और उम्मत तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम उलमा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं। तो ये सिलसिला भी अल्लाह का शुरू करता है। कुरान के सबसे पहले आलिम थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु,
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ قرآن کو پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے اور قرآن کو ایکسپلین کرانا، قرآن کی تشریح کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائے۔ تو قرآن کے سب سے پہلے حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے سب سے پہلے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ اس دور سے اب تک جاری ہے، اور قیامت تک اسی طرح قرآن کے الفاظ یاد کرنے کا اور قرآن کو ایکسپلین کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح حافظ اور عالم بنتے رہیں گے۔ جس طرح حافظوں کو اللہ نے چنا ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر، تشریح، قرآن کے علوم کو پڑھنے کے لیے علماء کو اللہ نے چنا ہے، اسی طرح جن جگہوں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جنہیں ہم آپ مدرسہ اور مکتب کہتے ہیں، ان جگہوں کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حافظ کو بھی کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے حافظ قرآن نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ عالموں کو اللہ نے چنا ہے۔ کوئی آدمی، کتنے طلبہ ہیں جو مدرسوں میں آتے ہیں لیکن بیچ سے چھوڑ کر چلے آتے ہیں، کتنے ہی بچے ہیں جو حفظ شروع کرتے ہیں لیکن مکمل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عالم اور حافظ بناتا ہے۔ اسی طرح کتنی ہی عمارتیں ہیں جہاں الگ الگ کام ہو رہا ہے، الگ الگ علوم پڑھائے جا رہے ہیں، الگ الگ طرح کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے، لیکن ہر عمارت میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ہر عمارت میں قرآن کا علم نہیں پڑھایا جاتا، ہر عمارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھائی جاتی۔ اللہ جن عمارتوں کو، جن جگہوں کو چنتے ہیں، جنہیں ہم آپ مدرسہ اور مکتب کے نام سے جانتے ہیں، وہاں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ مدرسہ بھی اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفاظ کے بارے میں بہت ساری باتیں فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں بہت سارے کام ہوں گے، دین کے بھی بہت سارے کام ہوں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوں گے، دین کے کام کرنے والے بہت سارے ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، قرہ بھی ہوں گے، اسی طرح نماز کی دعوت دینے والے بھی ہوں گے، روزے کی دعوت دینے والے بھی ہوں گے، کتاب لکھنے والے بھی ہوں گے، بیان کرنے والے بھی ہوں گے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، سب کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سب میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس میں قرآن کے الفاظ بھی شامل ہیں اور قرآن کے معانی بھی شامل ہیں۔ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کے حافظ اور قرآن کے عالم، ان تمام لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور بہتر لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حضور نے وارث کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اگر کسی کا انتقال ہوا، اس کی وراثت تقسیم ہوئی، تو ظاہر ہے وارث کون بنے گا؟ بیٹا بنے گا، یا اور جو وارث ہے وہ بنیں گے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو، اپنے والدین کی فرما بردار نہ ہو، اور اس نے اپنے والدین کو زندگی میں بڑا ستایا ہو، پریشان کیا ہو، تو والدین کے جانے کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وراثت اس کو نہ دے کر کسی اور کو دے دی جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کیسی بھی ہوگی، وارث کیسا بھی ہوگا، لیکن وراثت کسے ملے گی؟ وارث کو ہی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب انسان ہونے کے ناطے کمی ہر کسی میں ہوتی ہے، صرف نبی پرفیکٹ ہے اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، گناہوں سے معصوم نبی ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں معصوم نہیں لیکن محفوظ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے، اس سے کمی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے لیے یہ میسج چھوڑا ہے کہ ان علماء اور حفاظ کی اپنی ذاتی کمیوں کو دیکھ کر ان سے اس طور پہ بدظن نہ ہو جانا کہ ان کی اقتدا چھوڑ لینا۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تب بھی انبیاء کے وارث یہی رہیں گے، اور انبیاء کی جو وراثت ہے علم، وہ انہی کو ملے گی۔ اسی طرح بسا اوقات ہمیں بعض غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। हम में से हर आदमी शैतान को हराना चाहता है, शैतान से मुकाबला करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम दीन की अहमियत बताते हुए, जो दीन का समझ रखता है, दीन की समझ रखता है, दीन का सही इल्म रखता है, आका क्या फरमा रहे हैं कि एक दीन की समझ रखने वाला आलिम दीन शैतान पर 1000 इबादत गुजारों से ज्यादा भारी है। यानी एक इंसान वो है जो रात दिन अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, रात को वो तहज्जुद पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, रोजे रख रहा है, सदका खैरात कर रहा है, सारे दीन के काम कर रहा है, लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है, दीन की दावत दे रहा है। हुजूर जिसको इबादत गुजार कहते हैं, उससे बड़ा इबादत गुजार कौन हो सकता है? ऐसा इबादत गुजार। लेकिन अगर वो आलिम नहीं है, उसके पास दीन का इल्म नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, शैतान के मुकाबले में ऐसे 1000 लोग, इन पर एक आलिम दीन भारी है। आप अंदाजा लगाइए इन उलमा की और हुफ़ाज़ की और मदारिस की क्या अहमियत बतलाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम यानी पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया है, उस्ताद बनाकर भेजा गया है, टीचर बनाकर भेजा गया है। हुजूर की बहुत सारी सिफत है, आप दाई भी हैं, आप मुबल्लिग भी हैं, आप बहुत सारी सिफत है, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मुझे क्या बनाकर भेजा गया है? मुझे एक टीचर बनाकर भेजा गया है, सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, एक उस्ताद बनाकर भेजा गया है। इससे आप अंदाजा लगाएं इन उलमा की, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की क्या हैसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ये हुफ़ाज़ अल्लाह के मुंतखब करता है, उलमा अल्लाह के मुंतखब करता है, मदरसे अल्लाह के मुंतखब करता है। इस दीन की हिफाजत जो हमारी बुनियाद है, कुरान के अल्फाज की हिफाजत मदरसों में हो रही है, कुरान के मानी की हिफाजत मदरसों में हो रही है, कुरान से जो अहकाम निकल रहे हैं उनकी हिफाजत मदरसों में हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हिफाजत मदरसों में हो रही है, आपकी अहादीस की हिफाजत मदरसों में हो रही है। इन अहादीस से जो उलूम और जो अहकाम निकल रहे हैं, जिससे हमें दीन मिल रहा है, वो मदरसों में हो रही है। नमाज इन मदरसों से दी जा रही है, नमाज के फराइज, वाजिबात, पाकी नापाकी, ये मदरसों से हमें मिल रहा है। रोजा रखने का तरीका, रोजे के अहकाम, रोजे के मसाइल मदरसों से मिल रहे हैं। दीन के जो 5 शोबे, ईमान, इबादत, अखलाकियात, मुआशिरत, मामलात, ये 5 मदरसों से हमें मिले। अगर इन मदरसों को हम बाईपास कर दें, स्किप कर दें, तो हमें ये नहीं पता कि जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमें कहाँ से मिला है। अगर इन मदरसों को बाईपास कर दे तो हमें ये नहीं पता कि जो कलमा हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें नहीं पता ये कलमा हमें कहाँ से मिला है। अगर मदरसों को बाईपास कर दे तो हमें नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, ये कहाँ लिखा है। अगर मदरसों को बाईपास कर दे तो रमजान आ रहा है, रमजान के 30 रोजे रखना फर्ज है, ये कहाँ लिखा है। रोजे के मसाइल क्या है ये हमें नहीं मालूम होगा। आज कारोबार की नई नई शक्लें वजूद में आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। बहुत से लोग आकर मसाइल पूछते हैं इंश्योरेंस के बारे में, ज़कात से मुताल्लिक, बहुत शेयर को लेकर उसमें ज़कात निकलेगी नहीं निकलेगी, ये सब आपको कौन बतलाएगा? ये मदरसा बतलाएगा, उलमा बतलाएंगे। इन मदरसों को अगर बाईपास कर दिया जाए, उलमा और हुफ़ाज़ को बाईपास कर दिया जाए, तो हमारे पास दीन के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये मस्जिद, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये कुर्ता पैजामा, ये नबी वाला चेहरा, ये सब कुछ हमें इन मदरसों ने दिया है। इससे आप इन मदरसों की अहमियत का अंदाजा लगाइए। और फिर आज के दौर में ईमान की हिफाजत भी इन मदरसों से हो रही है, ईमान को बनाया भी इन मदरसों में जा रहा है और ईमान को बचाया भी इन मदरसों में जा रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की, मोमिनीन की सिफत बयान करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमान वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता है। मुझे बताइए, कुरान की सबसे ज्यादा तिलावत सुबह शाम कहाँ की जाती है? मदरसों में की जाती है। अगर मदरसों वालों का ईमान नहीं बन रहा है या ईमान नहीं बढ़ रहा है तो दुनिया में ईमान बनेगा किसका? कुरान पढ़कर अगर किसी का ईमान नहीं बनता
تو फिर कहाँ ईमान बनाने के लिए जाएंगे? तो ईमान असल जो बनता है वो उन जगहों पर बनता है जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये बात कुरान कह रहा है, और कुरान जो पढ़ाया जा रहा है वो मदरसों और मकातिब में पढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह आज के दौर में जो बातिल ताकतें हैं, जो ईमान पर हमला आवर हैं, जो इस्लाम पर हमला आवर है, जो नबी पर इल्जामात लगा रही हैं, जो कुरान पर इल्जाम लगा रही हैं, उनका जवाब भी अगर कहीं दिया जा रहा है, इन मदरसों में दिया जा रहा है। 10-10, 15-15 साल ये बच्चे आते हैं मदरसों में, अपनी जिंदगियां खपाते हैं, दीन सीखते हैं, और फिर जाकर उस जो हमला हो रहा है उसका मुकाबला करते हैं, और उम्मत के सामने बिल्कुल ठीक सही दीन पेश करते हैं। ये इन मदरसों का किरदार है। यहाँ ईमान बनाया भी जा रहा है, यहाँ ईमान बचाया भी जा रहा है। इसी एक मदरसे के तकमील कुरान का आज ये प्रोग्राम है जिसमें हम मौजूद हैं। तो एक तरफ जहाँ हम हुफ्फाज का एजाज करें, वहीं ये बात याद रखें कि जिन फैक्ट्रियों में ये हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं उनका मकाम व मर्तबा रूए जमीन पर अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा है, और जिन लोगों ने इन्हें पढ़ाया है इनका मकाम व मर्तबा रसूलुल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा है। आपने फरमा दिया कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ईमान की हिफाजत के लिए, अपना ईमान बनाने और अपना ईमान बचाने के लिए मरते दम तक इन मदरसों से, इन उलमा से और इन हुफ्फाज से ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ के मुख्तसर सी दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुदर। हाजी रशीद साहब बहुत सख्त तालील हैं, उनकी सियासयाबी के लिए भी दुआ फरमाएं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुदर फरमा दीजिए। हम सबको मरते दम तक कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, कुरान सीखने की तौफीक अता फरमा दीजिए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, मरते दम तक कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, कुरान को हिफ्ज किया, हमें इनसे मोहब्बत करने वाला, इनसे ताल्लुक रखने वाला बना दीजिए। जो लोग कुरान के उलूम मानी सीख रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें उनसे मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। इन मदरसों से मोहब्बत करने वाला और ताल्लुक रखने वाला बना दीजिए। इस मदरसे का आज ये प्रोग्राम है, जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इस मदरसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। यहाँ के जिम्मेदारान, असातिज़ा, तलबा, मुआविनीन, मुखलिसीन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। आलम इस्लाम के तमाम मदारिस की, हमारे मुल्क में चलने वाले तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा दीजिए। मेरे मालिक, जो लोग बीमार हैं, जिनकी दुआओं के लिए कहा है, सबको शिफाए कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। हम सबको हर तरह की बीमारी से महफूज फरमा दीजिए, जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज फरमा दीजिए, रूहानी बीमारियों से भी महफूज फरमा दीजिए। मेरे मालिक, जो लोग दुनिया से चले गए, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अइज़ा, अक़रबा, वालिदैन, भाई बहन, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिए। कुरान पाक की बरकत से हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें रमज़ान अता फरमा दीजिए। रमज़ान में कुरान पाक से ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, इन जिन्होंने बातें कही, मेरे मालिक इनको कबूल फरमा लीजिए। हम सबको उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। जो मजमा यहाँ इतनी देर बैठा रहा, इसको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए, और हम सब की हाज़िरी को बेपनाह कबूल फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।